Bless us on this auspicious day. Hello. Very good morning to all of you. And very happy 77th Republic Day of our great nation, India. I would like to extend my heartiest congratulations to all the citizens of India on 77th Republic Day. My dear students and respected parents, we are here to celebrate 77th Republic Day. Republic Day is not only a day of celebration, but it is the day to feel, to have the sense of being sovereign and to have our own constitution. Everybody knows that our nation got independent on 15th August 1947.
The day 15th August 1947 we celebrate, but we must know that behind this 15th August 1947, how many years have been spent of a great freedom struggle. It is about 90 years of freedom struggle that could bring the very auspicious day of Independence Day, 15th August 1947. But this was not only the freedom in true sense, unless we are getting our own constitution, unless we are getting our own law to run the country. Hence, it took 3 more years to become a complete republic. Dear students, at the end of 1920, after having the struggle, the Britishers given a dominion to India to have a very limited self-regulation. Rest other things were under the rule of the Britishers. And in the session of Indian National Congress in 31st December 1929, a resolution was passed to have the complete freedom, जिसको कहते हैं पूर्ण स्वराज. और 26 जनवरी 1930 को इस अधिवेशन के बाद इंडिपेंडेंस डे घोषणा की गई, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन इंडिया took a pledge to fight for a complete freedom. पूर्ण स्वराज के लिए लड़ने की जो प्रतिज्ञा की गई वो इस अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को की गई. और तब से ये स्ट्रगल चलता रहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. और इसको आगे बढ़ाते हुए जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके पहले से ही हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की 19 दिसंबर 1946 को, अपनी एक संविधान बनाने के लिए, अपने रूल ऑफ लॉ बनाने के लिए. और उस संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे ही बिहार के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और ड्राफ्टिंग कमेटी एक बनाई गई, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे हम जानते हैं संविधान निर्माता के रूप में. 1946 when India was not independent, it was the way of getting independence, it was the freedom struggle. 389 members were selected from different parts of India when India was not free, and after partition that became 299 members selected from different parts. And out of 299, 36 members were there from this state, Bihar. हमारे बिहार से भी उसमें 36 मेंबर्स थे जिन्होंने बहुत योगदान दिया इस संविधान को बनाने में. अपने संविधान के लिए जोर से ताली बजाएं, और अपने बिहार के लोगों के लिए भी जिन्होंने उसमें काफ़ी योगदान दिया संविधान को बनाने में. उन्हीं में से हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, शशिकांत सिन्हा थे, जगजीवन राम थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने सबने मिलकर इस संविधान की रचना की थी. उनमें सबका नाम था, लेकिन जो फाइनल ड्राफ्टिंग कमेटी हुई उसके चेयरमैन हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे. और ये श्रेय उनको जाता है जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया और एक बहुत ही सुदृढ़ संविधान हमारे देश को मिला. That constitution was adopted, however,
on 26th November 1949, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और 26 January 1950, that was the day when Constitution was implemented, came into effect. There is significance of this 26 January 1950 because that was the first day on 26th January 1930 when the resolution was passed and the day was declared as Independence Day, to have the pledge for the complete freedom. ये वो दिन था 26 जनवरी 1930 को जब कांग्रेस के अधिवेशन में ये बात प्रतिज्ञा की गई थी कि हमारा देश, उस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना था लोगों ने, और उसी दिन प्रतिज्ञा की थी कि हमारा देश एक संपूर्ण स्वशासन का देश होगा, एक पूर्ण स्वराज का देश होगा। इसलिए 26 जनवरी के दिन को ही रखा गया। इसका एक सिग्निफिकेंस था कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हो, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और तब से दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एंड हाउ beautifully it was written. So many things have been incorporated so that the constitution can come up to a complete form and could facilitate the citizen of India to move towards the prosperity, to move towards the real democracy. This constitution not only the book of law, that is the vibrant life leading policies. ये केवल एक कानून की किताब ही नहीं है, एक पूरा नीति ग्रंथ है, एक जीवंत नीति ग्रंथ है, जिसे हम केवल कानून ही नहीं सीखते बल्कि जीवन जीने की एक सिटीजन के रूप में अपने आप को कैसे सुदृढ़ करें, एक सिटीजन के रूप में, एक डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक देश में एक नागरिक के रूप में अपने आप को कैसे विकसित करें, इन सारी चीज़ों का उसमें उल्लेख है। और इसलिए हमारे संविधान में अधिकार तो है, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी दिए गए हैं कि हम अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी बोध रखें, ताकि एक बैलेंस्ड हमारा देश एक बैलेंस तरीके से चले, एक सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़े। और इन 77 सालों में हमने देखा है कि इस सुदृढ़ संविधान की वजह से हमारा देश आज विश्व पटल पर बहुत आगे बढ़ रहा है, विश्व पटल पर बहुत अग्रणी स्थान बना रहा है, और पूरा विश्व भारत की तरफ एक बहुत ही उत्कृष्ट भावना से देख पा रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो आने वाले समय में एक बहुत सुदृढ़ और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में स्थापित होगा। हमारे इस गणतंत्र, इस कॉन्स्टिट्यूशन के और फ्रीडम स्ट्रगल के इस यात्रा में हमारा विद्यालय, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से विद्यालय जुड़ा है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत पुराना है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज was the first institution opened in 1886, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आर्य समाज से जुड़े ऐसे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप सबने नाम सुना होगा लोगों का। स्वामी दयानंद सरस्वती तो थे ही, स्वामी श्रद्धानंद जी, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे जो थे वो इसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग थे, आर्य समाज से जुड़े हुए लोग थे। और राम प्रसाद बिस्मिल की वो लाइन तो सभी को याद है, सभी को याद है ये चीजें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन सब मतलब इतनी ज्यादा ओतप्रोत भावना राष्ट्र के प्रति थी। और हमारे बिहार के भी बहुत सारे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब क्योंकि हम इस जनरेशन में हैं तो हमारे ये कर्तव्य बनता है, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम
इस सुदृढ़ राष्ट्र को और अच्छा बनाएं, और सुदृढ़ बनाएं, और एक नागरिक के रूप में अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करते रहें। तब जाके ये राष्ट्र एक संपूर्ण राष्ट्र, जिसकी परिकल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, उस रूप में ये उभर कर सामने आएगा और विश्व पटल पर अपना एक विशिष्ट स्थान जो बना रहा है उसे और आगे सुदृढ़ रूप से बनाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से भारत के 77वें रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। मेरे साथ बच्चे बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, और कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान का है, नशा ये हिंदुस्तान का है। नमस्ते एवरीवन। First of all, I wish you a brilliant Republic Day. I, Priyanshu Gaurav, standing here in front of you all as an anchor with my group, Neha, Ananya and Rayan. And I would like to welcome you all. How blissful this morning is, where we all are gathered to celebrate our 77th Republic Day. Yes, Mama. Freedom in mind, faith in our heart, and pride in our soul. So let's salute our nation on Republic Day. May the tricolor fly high and India continue to prosper. Now get ready to feel the rhythm of unity. We have a power-packed patriotic group song by talented student of senior classes. So let's feel the atmosphere with zeal and pride as they showcase their love with their motherland. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब गाए इस देश के तराने, आओ हम सब गाए इस देश के तराने। ये देश है निराला, ये देश है निराला, निराली है फसाने। आओ हम सब गाए इस देश के तराने, आओ हम सब गाए इस देश के तराने।
सुंदर गीत की रचना है उतनी ही ऊर्जावान आपकी प्रस्तुति रही। मंच पर आप सभी का सामंजस्य बिन कर लगा, मानो पूरा भारत एक सुर में गा रहा हो। Alright, now next to move to next performance. Every step equals freedom. Every step equals freedom, and every reflects pride. On this proud occasion, I would like to call Shanvi for a solo dance performance. So please put your hands together. Shanvi Kumari, please come on the stage for your solo dance performance. Shanvi Kumari, please come on the stage. Wow, thank you for that breathtaking performance. ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कि जब भाव हो भारत और भावना भी हो भारत तो प्रस्तुतियां ऐसी होती है जोरदार तालियों के साथ। Thank you, ma'am. अब मैं To the respected principal, teachers, parents. ठीक है। Good morning to the respected principal, teachers, parents, and all my dear friends. My name is Aradha. First of all, I wish you very happy Republic Day. Today is 26th January. We can celebrate our 77th Republic Day of our country. This day is a national festival for us. On this day, our Constitution came into force on 26th January 1950. Republic Day is important as Independence Day. The Constitution of India is supreme law of India. The Constitution in whole world, Dr. Baba Saheb Ambedkar is known as Father of Constitution. Today we have a great republic, means our country whose leader is a president, not a king or queen. This would have been possible if our freedom fighter had not made numerous sacrifices for our country. I am proud that I am Indian. I love my India. Jai Bharat. नन्हे मुन्हे कदम जब ताल से मिलते हैं, नन्हे मुन्हे कदम जब ताल से मिलते हैं तो सूखे चमन में भी फूल खिल जाते हैं। अब वक्त है उस मासूमियत का जो इन नन्हे सितारों के दिलों में है।
मंच पर आ रहे हैं ये हमारे नर्सरी और एलकेजी के नन्हे कलाकार। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। रंग अनेक भाव लाए, गणतंत्र का दिन गर्व बढ़ाए, देश को आगे बढ़ना सिखाए। क्यों में होता है नन्ना मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। That was a lovely performance by our little star. वीरांच श्रद्धा सुमन अर्पयितुमिच्छामि ये वीरा स्वप्राणान् स्वतन्त्रता यज्ञकुण्डे भूतवन्तः। अद्य वयं सर्वे भारतस्य गणतन्त्रदिवसं सहर्षेण आचरितुं समागच्छामः। अयं दिवसः अस्माकं राष्ट्रस्य गौरवपूर्णदिवसः अस्ति। गणतन्त्रदिवसः केवलं पञ्चाङ्के लिखिता तिथिः नास्ति, अपितु अस्माकं लोकतन्त्रस्य आत्मा अस्ति। एकोनविंशतिशतं वर्षस्य जनवरी मासस्य षड्विंशतितिथौ अस्माकं संविधानं कार्यान्वितम् अभवत्। गणतन्त्रदिवसः केवलं प्रदर्शनम् अवलोकनं च नास्ति। अयं दिवसः अस्माकं स्वतन्त्रतासङ्ग्रामिणां त्यागान् डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महोदयस्य, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादस्य च सदृशानां महान् नेतॄणां स्मरणं कारयति, येषां प्रयत्नेन भारतम् एकं गणतन्त्रराष्ट्रम् अभवत्। तस्मात् कारणात् भारतीयनागरिकाः स्व अधिकारान् कर्तव्यान् च प्राप्नुवन्ति। वयं छात्राः भारतस्य भविष्यः स्मः। सम्यक् अध्ययनं कर्तुम् अस्माकं विविधतायाः सम्मानं कर्तुं देशस्य प्रगतौ योगदानं दातुं च अस्माकं कर्तव्यमस्ति। आगच्छन्तु वयं सर्वे अस्माकं हृदयेषु भारतवर्षस्य गौरवं संरक्षणाय प्रयत्नं कुर्मः। अस्माकं कर्मसु भारतस्य गौरवं च प्रकाशयेम। भारतं वर्तते मे परं सम्बलं, भारतं हृदये स्मरामि प्रियं, भारते नास्ति मे जीवनं जीवनं, भारताय अर्पितं मे अखिलं चेष्टं। जयतु भारत।
मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाज़ें, सुन के रहट की आवाज़ें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। वाह, कमाल की परफॉर्मेंस है। खुल के जी रहे हो यदि यहाँ तो। Morning everyone, respected principal, sir, teacher and my dear friends. My name is Kunal Sridhar from Vansi. Today we are celebrating Republic Day. On this day in 1950, the Constitution of India came into effect and India became a republic. Our Constitution is the rule book of our country. It tells us how to run our country, gives us rights and duties. Because of the Constitution, we live with freedom, equality and justice. Republic Day is celebrated with a grand parade in New Delhi and President unfurls the national flag. Let us promise to be responsible citizens and serve our nation with honesty and pride. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Ah
माँ के बेटों को किसने यूं ही याद किया, कब किसने यूं ही याद किया। थोड़े सदगढ़ मिले मज़ारों पर, थोड़े सदगढ़ मिले मज़ारों पर। सुन लेना मेरा अफ़साना, सुन लेना मेरा अफ़साना। है हवा मज़ारों पर उनके, रुक कर जाना, रुक कर जाना। है हवा मज़ारों पर उनके, रुक कर जाना, रुक कर जाना। घर झुक कर भी हंसी में सोया है कोई दीवाना। घर झुक कर भी हंसी में सोया है कोई दीवाना। I am Siddhipriya from class 8F, and today I stand before you with pride and responsibility to speak on the occasion of Republic Day, the day that reminds us the glory, spirit and strength of our great nation, India. 26th January is not just an ordinary date on the calendar. It is a day when India becomes a true republic, guided not only by the rulers but by the will of its people. On 26 January 1950, our country adopted the Constitution of India, a sacred document which gives our country its identity, direction and unity. The Indian Constitution is one of the most longest and strongest constitution of the world. It was drafted under the great leadership of Dr. B.R. Ambedkar, who was also known as the architect of Constitution. Our Constitution guarantees us liberty, equality, fraternity and justice. They are not just words, they are the pillars of democracy. And it provides every citizen's fundamental rights such as right to freedom, right to religion and right to education. And at the same time it reminds us of our fundamental duties to respect the nation, protect its unity and follow its laws. Our Constitution teaches us that India is a nation with diversities in lifestyles, customs and religions, yet united by the constitutional values. As a responsible student and proud citizens, we must respect the Constitution, obey its principles and uphold its dignity in our thought, expressions and actions. Let us promise today to be a disciplined student, to believe in equality and justice, and to make an India that our Constitution truly dreams of. Jai Hind, Jai Bharat. Splendid! Outstanding players, ladies and gentlemen. Level other than the 77th celebration of our republic. बच्चों जोरदार लहरा के हो जाए, आवाज नहीं आ रही है। और आपके सामने वो लोग हैं जो नेशनल में हॉकी जीत कर आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल, एंड आई कॉल अपॉन रोहित राज, हर्षराज, समीर कुमार, समीर आ गया? यस। अरे तालियों की गड़गड़ाहट कुछ कम नहीं हो रही। नेशनल में जीतना, डॉक्टर जीएल दत्ता डीएवी टीम प्राउड फील करती है। युवराज सिंह, गोलू कुमार, रक्षित राज, जिनके हाथ में झंडा है वो झंडा ऊंचा करें। ये बाजुओं का दम दिखाकर ताली बजाओ जो ऐसे बैठे हुए हैं। आदर्श राज, श्रेयस राज, सनी शंकर,
अभिज्ञान मिश्रा, ऋषभ राज, प्रतीक दुबे, आदित्य राज, आयुष आनंद, उदय प्रकाश एंड तेजस्वी यादव.